नाउ एरेबल लैंड क्या होती है दिव्या? Crops are grown is known as arable land. Mostly all of the Indian land is arable land. Now type of farming हम देखेंगे. और कुछ चीजें और देखेंगे. There are 5 things. One is agriculture, culture, and sericulture. There is pisciculture, viticulture, and horticulture plus culture. एग्रीकल्चर का मतलब है लैंड पर जो प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑन द सॉइल. एग्री का मतलब ही सॉइल होता है, ऑन द सॉइल. और रेजिंग क्रॉप्स, और ये भी कह रहा है एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक. देखो कितनी बड़ी बात कर दी. एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक यानी पशुपालन अगर कोई कर रहा है तो वो एग्रीकल्चर में ही आएगा, क्योंकि वो जमीन पे जो चीज़ है, एग्री का मतलब ही सॉइल होती है, तो सॉइल पे जो चीज़ उगाई जाए, पशु भी तो सॉइल पे ही रहेंगे. तो इसका मतलब है रियरिंग लाइफ स्टॉक, पशुपालन किस में आ जाएगा? एग्रीकल्चर में आ जाएगा. नेक्स्ट इज sericulture, commercial rearing of silkworm. So it may be supplement the income of the farmer. तो silkworm हम करते हैं. और अब मैं बताता हूँ कि शहतूत के पेड़ को किसी को मालूम है क्या कहते हैं? शहतूत मैं दिखा भी देता हूँ, जिस पे सिल्कवर्म होते हैं. हिबिस्कस सुनेंगे. चलो मैं दिखा भी देता हूँ. शहतूत और सिल्कवर्म होता है, तो दोनों चीजें आप देखो. ओके, ये देखो. सो sericulture. So पिछली वीडियो में हमने कोकोनी की प्रोसेस देख ली थी. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिल्कवर्म से सिल्क की प्राप्ति करते हैं, यानी कि सिल्क की वीविंग करते हैं. तो जब लार्वा कोकून के अंदर पैक हो जाता है तब वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. फिर इसे कोकून से सिल्क फिलामेंट निकालने के लिए इन्हें गर्म पानी में डालकर कुछ देर तक बॉइल किया जाता है, जिससे कि कोकून के अंदर प्रेजेंट प्यूपा मर जाए. और फिर इन डेड कोकून से सिल्क की वीविंग की जाती है या सिल्क फिलामेंट को बाहर निकाला जाता है. और थोड़ा सा प्रोसेस देखें. सो As sericulture is a process of rearing silkworms for the production of silk. It is an ancient practice that originated in China and has spread to various parts of the world. चाइना में सिल्क का Silkworms are the larval stage of silk moths and they feed on the leaves of mulberry trees. मलबेरी शहतूत. Silkworm farming involves careful management of silkworms from egg to cocoon
तो धीरे-धीरे इसमें देखो कैकून बनेगा। It that begins with obtaining silkworm eggs good conditions until they hatch. Usually around 25, 10 to 14 days. Silkworm rearing contain. Ensure there is enough space सिल्कवॉर्म for के the एग्स larvae भी to आते हैं, वो move डाल and दिया feel पेड़ तो खूब comfortable. सारे सिल्कवॉर्म हो जाएंगे। Intake ये cleanliness देखो and ये rearing मलबरी contain. लीव्स हैं। मलबरी लीव्स को तुम एक ट्रे में भी डाल सकते हो, उसको भी ये खा जाएंगे। जरूरी नहीं कि पेड़ से Larval होगा, है ना? stage care. फिर Monitor उसे the खा silkworm जाएंगे। larvae closely for their और growth. फिर धीरे-धीरे इनसे phase. क्या बन जाएगा? When the silkworm larvae are fully grown, they will larvae- stop feeding and begin spinning cocoons to enter the pupal stage. Provide appropriate conditions for cocoon formation, such as dry and quiet अब areas. इसी में धीरे-धीरे The सिल्कवॉर्म larvae डाल will दिए attach हैं। themselves उसको to a ढक दिया भी suitable है। surface and spin a cocoon around their bodies. अपने चारों तरफ Cocoon उन्होंने harvesting. यही ककून ही After सिल्क about है। 2 weeks, the cocoons are ready for harvesting. इनको गर्म पानी में डाल दोगे तो क्या इसके अंदर से कीड़े मर जाएंगे? हाँ। जो लार्वा से। The cocoons can be used for silk production or for breeding future generations of silkworms. Silk extraction. To extract silk from the cocoons, a process called breeding is carried out. The cocoons are boiled in water to loosen the sericin, gummy substance, and then the silk filaments are अंदर का unwound. सब कुछ निकल जाएगा। ये Multiple पूरा नेट filaments होता are है। combined to create a single silk thread. और फिर Silk इससे processing. The silk thread obtained from reeling is then processed further to remove impurities and enhance its quality. This involves steps like degumming, dyeing, and weaving. The processed silk is ready for various applications, including ये अब सिल्क textile की साड़ी production. होंगी। Conclusion. तो इस तरीके से आपने देखा Silk farming is a मलबरी लीव्स में होता fascinating and है। intricate process that So, involves the rearing of silkworms from हमने eggs देख to लिया कि सेरिकल्चर क्या है बताइए? That is rearing of silkworm ना? Rearing of silkworm, silkworm की rearing करना और silkworms are reared on mulberry leaves, ठीक है? On मलबरी, आपको मलबरी बता दे रहे हैं। इसके फल किसी ने जरूर खाए होंगे, कितने लोगों में, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, है ना शहतूत को देखो, मलबरी ट्री। According to Wikipedia, Morus, a genus of flowering plants in the family Moraceae, consists of diverse species of deciduous trees commonly known as mulberries, growing widely इस under तरीके का cultivation तुमने in many फ्रूट खाया temperate है? regions. वो छोटे-छोटे होते हैं, हैं? आया ना? मीठा-मीठा होता है, हल्का नमक डाल के देगा जो भी देगा। तो ये शहतूत, ये देख लो, ये पहचानते हो, है ना? So पिसीकल्चर देख लीजिए, छोटी सी जगह पे होता है पिसीकल्चर। तो बहुत सारी मछलियां अगर कोई छोटे से उसमें ये की जाती हैं, देन इट इज पिसीकल्चर। ये देखो कितनी सारी मछली होंगी, देख रहे हो आप? पिसीकल्चर कोई कमी नहीं है, पूरा उसका पॉन्ड भरा है मछलियों। तो इस तरीके से पिसीकल्चर होता है। ये देख लो, उसी में वो खड़ा भी हो जा रहा है। ये अनाज ले लिया मछली का और ले गया। ये बगल में इसने एक सीमेंट का ही तालाब बना रखा है। जरूरी नहीं कि नदी ही होनी चाहिए, और वाटर ड्रेनिंग हो जाएगा। पानी से ज्यादा तो मछलियां है भी, देखो इसको गीला कर रहा है पानी से। अब देखो उसी में खड़ा हो बेटा,
फिशिकल्चर क्या है बताइए? दैट इज ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड। देखो कितना अच्छा लिखा है, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक। ऐसा इसने किया है कि नहीं? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स। नेक्स्ट देखो, विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो विटिकल्चर में भी इतने अंगूर लगते हैं कि देखने लायक होते हैं, बहुत सारे। हाँ। विटिकल्चर, ये देखो। सो ये विटिकल्चर में ये कितने अंगूर लग रहे हैं देखो, विटिकल्चर, ठीक है। सो इट इज ए काइंड ऑफ विटिकल्चर। ये देखो, ये पूरा अंगूर ऐसे ही लटक रहा है इसके पेड़ में। कितना सारा इतने छोटा ही होता है, आदमी के बराबर, झुक झुक के काटना पड़ता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। मेरे घर में तो क्लाइंबर है। क्लाइंबर भी हो सकता है, पर चाइना में देखो कितने सारे। हाँ, तो क्लाइंबर है वो। ऊपर बाहर चलो। है क्लाइंबर। So it is viticulture, cultivation of grapes, and horticulture। उसी जमीन में अगर आप क्या सब्जी उगाने लग जाओ, Flowers so and fruits। growing vegetables, flowers and fruits for commercial use। फ्लावर्स में भी इसमें आ जाएंगे, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स में, ग्रेप के अलावा फ्रूट्स। एप्पल। ग्रेप तो इसमें आ जाएगा ना, एप्पल। सब इसमें आ जाएगा। फ्रूट्स फॉर, क्योंकि इनके बनाने का अलग वो होता है। सो फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज। So there are 5 types of cultures. Now let us see that the farm system of arable soil. Farm system देखिए, फिगर में जैसा दिया है, the farm system of arable soil। फार्म सिस्टम में एक इनपुट होगा और एक प्रोसेस होगा और एक आउटपुट होगा। इनपुट में आपको मशीनरी लगानी पड़ेगी और सीड्स भी देने पड़ेंगे, केमिकल्स, प्लोइंग करनी होगी, स्प्रेइंग। फिर बीज बोना पड़ेगा और फिर स्प्रे करना पड़ेगा। केमिकल स्प्रे, सीड की सोइंग और मशीनरी से प्लोइंग, मशीनरी प्लोइंग, सीड सोइंग और केमिकल से स्प्रे। और इन तीनों का मिला जुला आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में क्रॉप्स मिल जाएगी। इसमें जो ह्यूमन इनपुट्स की भी जरूरत होती है और फिजिकल इनपुट्स। जहां तक हम इनपुट की बात कर रहे हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक है ह्यूमन इनपुट्स और एक फिजिकल, और एक दूसरे भी इनपुट्स हो सकते हैं, जैसे केमिकल इनपुट्स या दूसरे ऐसे अलग से हो सकते हैं। तो ये तो आपके इनपुट्स हैं जो मनी बेस्ड हैं, लेकिन ह्यूमन इनपुट्स में क्या क्या आ जाएंगे? स्टोरेज, आपने सीड को स्टोर किया तो स्टोरेज किया, फिर लेबर, मशीनरी केमिकल्स और केमिकल्स।
ये ह्यूमन के बनाए हुए हैं। तो ह्यूमन खुद मेहनत करके करे या पैसा लगा कर करे, हम ही इनपुट डालेंगे। और नेचर क्या क्या इनपुट देता है, क्या टेम्परेचर देता है, रेन देता है। तो उसमें रेन, सनशाइन, टेम्परेचर फॉर सनशाइन, रेन, ठीक है, टेम्परेचर और सॉइल भी है। स्लोप का क्या काम है, मुझे समझ नहीं आया। स्लोप क्या करेगा पता नहीं मैं सोच। फिजिकल इनपुट में काम करेगा। इतनी चीज तो चाहिए कि नहीं। अब देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के क्या क्या मेथड है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है, दैट इज टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। आप अपने घर की जरूरत को पूरा करो। इट इज डन टू फुलफिल नीड्स ऑफ, सिर्फ अपने घर के लिए, फार्मर्स फैमिली। ये बड़े लेवल पर नहीं होती है, बस छोटे मोटे स्तर पर होती है। और उसमें थोड़ा गेहूं उगा लिया, थोड़ी सब्जी उगा ली। और लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स है। इसके लिए बाहर से किसी को लेना नहीं पड़ता है, घर के लोग ही लग जाते हैं। अब कोई ट्रैक्टर थोड़ी ना मंगाना है तुम्हें घर के लिए गेहूं उगाना है 2 बोरे। तो इसलिए इसमें क्या होगा, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज। घर के बच्चों को लगा दिया, चलो आज स्कूल नहीं जाना है, कटाई करनी है। एंड हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज। जैसे अनमोल को लगा दिया, फिर अनमोल को फिर बाद में जब पूरे दिन कटाई की तो नींबू पानी पिला दिया पापा ने, लो। फिर इस तरीके से। So subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence. इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब बहुत प्राथमिक दर्जे का, इंटेंसिव का मतलब घना, इंटेंसिव और डेंसर। और ये प्राइमरी। प्रिमिटिव का मतलब एक्सटेंसिव। अब जरा देखो, द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज of sunshine and fertile soil permits grow of more than one crop annually on same plot. वो उसी जमीन पर क्या करता है पलक? हाँ, आप ही बता सकते हैं। अब बहुत अच्छा बता आप, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, बोलो कि इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है। हाँ बोलो देवव्रत। Yes, it is more than one crops are grown in a single piece of land. समझ में आई बात की नहीं? So इसमें क्या होगा, more than one crops are grown in single piece of land. सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बताओ? तो उसी के तो टाइप्स पढ़ा, थोड़ा तो पीछे का चला, फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लेट आई हो, हमें कोई बच्चों की चिंता नहीं है, टॉपर्स की हमें पहले चिंता होती है। बैठे रहेंगे 25 मिनट। बोलो सबसिस्टेंस फार्मिंग, बोलो। हाँ, जिसमें द क्रॉप इज ग्रोन फॉर द फैमिली नीड्स। अभी कितना अच्छे से समझा रहे हैं आप, इसको क्यों नहीं बोल रहे? सो सबसिस्टेंस, हाँ, तो मोर देन वन, ये है सबसिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ लिखा है
सबसिस्टेंस फार्मिंग एक से मतलब वहाँ पर घर के ही फैमिली नीड्स को फुलफिल किया जाता है एंड हाउस होल्ड लेबर को लगा दिया जाएगा. सो मोर देन 1 क्रॉप्स आर ग्रोन. अगर बहुत सारी, एक छोटा पीस है, यहाँ पे गोभी उगा दिया और यहाँ पर अंगूर लटका दिया और वहाँ पे पत्ता गोभी उगा दिया, और इसी में गेहूं उगा दिया, तो वहाँ पे पत्ता गोभी. तो इसको कहेंगे कि इंटेंसिव. उसी में सब कुछ उगा दिया. और दूसरा क्या है? प्रिमिटिव. इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक. घुमंतु लोग हैं, यहाँ खेती की, वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. उनको कुछ करना नहीं है, उनको प्लोइंग तक भी नहीं आती है. तो इसमें प्लोइंग वोइंग सब कुछ होगा. और जैसे इसमें क्या, राइस इसकी मेन क्रॉप होगी. राइस, व्हीट, मेज, पल्स, ऑयल सीड्स, ये सब चीज ये उगाएंगे. ठीक है कि नहीं? राइस उनकी मेन क्रॉप है. फिर व्हीट भी उगा सकते हैं और मक्का उगा सकते हैं. मेज, पल्सेस, दाल भी चाहिए और पोटैटोज भी हैं. ऑयल सीड्स, ये सारी चीज अगर उगा लेंगे तो फिर इनका काम चल जाएगा. जैसे यहाँ की राजस्थानी थाली में सब्जी नहीं मिलेगी, दाल बाटी मिलेगी, दाल का चूरमा मिलेगा, दाल होगा, गेहूं होगा और चीनी, इसके अलावा घी खूब होगा. सब्जी कहीं होगी नहीं. सब कुछ इन्हीं 4 चीज़ों की बनी होगी. चाहे गट्टे की सब्जी हो, चाहे और कुछ भी हो, उसके कई रूप मिल जाएंगे. क्योंकि यहाँ सब्जी का कल्चर ही नहीं है, सब्जी अफोर्ड ही नहीं कर सकते. ये ड्राई लैंड है. समझ में आया कि नहीं? तो ये अगर जिसके पास ये चीज़ है, उसे सब्जी की ज़रूरत नहीं, वो साल भर खा सकता है बिना सब्जी के. खा सकता है कि नहीं? तो इसलिए ये सब उगाया जाता है. Intensive farming is prevalent in thickly populated area of the monsoon region of Southeast and East Asia. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? Primitive farming कैसे होती है? So it is shifting cultivation. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया जाएगा. ज़मीन जला दी, थोड़ा हो से खींच लिया, सही है. So it is काइंड ऑफ, और एक ही फसल डाल दी, स्कैटर पर भी अभी जो गया नहीं, काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन. व्हाट डू यू मीन आद्या बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग? सर सबसिस्टेंस इसमें सिर्फ वो फार्मर फैमिली की नीड फुलफिल कर सकता है, उतना ही क्रॉप उगाता है. इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव फार्मिंग में वो एक ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स उगा सकते हैं. प्रिमिटिव फार्मिंग, सिर्फ प्रिमिटिव फार्मिंग में वो काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है. आप मुझे ये बताइए, जो इनपुट्स हैं उसमें एक फिजिकल इनपुट है और उसमें एक ह्यूमन इनपुट है. ह्यूमन इनपुट में क्या क्या आएगा? सर ह्यूमन इनपुट में सोइंग, प्लोइंग. ह्यूमन इनपुट में स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, लेबर, मशीनरी और सीड्स और केमिकल्स, ये सारी चीजें आ जाएंगे. और नेचुरल इनपुट में क्या जाएंगे? फिजिकल इनपुट में सनशाइन, लैंड, सॉइल. और बोलो, बताओ आप. सनशाइन, स्नो, लैंड, टेम्परेचर, रेन. बहुत अच्छा. नाउ विटीकल्चर, सर कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, cultivation of fruits, vegetables, crop combinations. पिसिकल्चर, Sir, cultivation of fish. ठीक है. इंटेंसिव फार्मिंग, Sir, various type of crops are grown and varieties of plants. प्रिमिटिव फार्मिंग, That is kind of shifting cultivation. सबसिस्टेंस फार्मिंग. Sir, like farmer take अपनी the farmers अपनी family के लिए. ठीक. चलो, इतनी बात हो गई. अब हम देखेंगे. आप मुझे बताइए, फार्मिंग के 2 मेथड्स, क्या 2 टाइप्स हैं फार्मिंग के? सर एक तो मशीनरी से हो सकता है. आप बताओ. सब्सिडेंस फार्मिंग, हाँ. इंटेंसिव फार्मिंग.
सब्सिस्टेंस की तो दो टाइप है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। सब्सिस्टेंस और दूसरा कौन सा? कॉमर्शियल बोलो ना, बुक में नहीं लिखा है क्या? एक सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल। तो तुम सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव, वो तो सब्सिस्टेंस के टाइप बताने लग गए तुम। बगल वाला कितना क्लियरली बता रहा था, तो नहीं उससे सीखा। तो सीखो अनमोल से। चलो अगला देखो, ये अपने पास बैठाने का 100 रुपये लेता है, साइंटिस्ट ऐसे नहीं बैठा। अब जरा देखो, नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। इसमें दो चीजें आती हैं। व्हाट डज इट मीन बाय नोमैडिक हर्डिंग देवव्रत? सर एक बड़े ग्रुप में सर चराना की बकरियां। हर्डिंग का मतलब है झुंड में बकरियां पालना। देखो ऐसा लिखा है, वो लोग पूरी बकरी ले जाएंगे, जहाँ घास मिली बोले चल लो, किसी को लिखे तो जल्दी जल्दी चलो। नोमैडिक हर्डिंग समझ में आया? नोमैड्स होते हैं जो यहाँ से खाना बदोश लोग। नोमैड्स का मतलब है कि यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, तो नोमैडिक का मतलब है खाना बदोश। हर्डिंग दैट इज एक तरीके से घुमंतु पशुपालन। हर्डिंग लिख लेना। हर्डिंग का मतलब है झुंड, पशुओं का झुंड, और नोमैडिक का मतलब है कि घुमंतु पशुपालन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के दो टाइप्स क्या हैं? बोलो। नोमैडिक हर्डिंग। नाउ सेकंड इज ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड इज कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होगा? दैट इज क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। इतना दूध उगा लेगा ऑस्ट्रेलिया या स्विस, दैट इज स्विट्जरलैंड, कि पूरे दुनिया को दूध और डेयरी सप्लाई करेगा। बहुत सारी ऐसी चॉकलेट है मेड इन स्विट्जरलैंड, मिल्क चॉकलेट, तो वो पूरी दुनिया को मिल्क सप्लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इतना ज़्यादा वहाँ पर ग्रास लैंड है, मेड्यूज है। तो इसलिए कॉमर्शियल में इफ क्रॉप्स आर ग्रोन और एनिमल्स आर रियर्ड फॉर, ये सही कह रहे हैं, सीखा कौन से? दैट इज फॉर सेल इन मार्केट। ठीक है, दैट इज क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared for sale in market। अब जरा देखो, मोस्ट ऑफ द वर्क, इसमें फर्क क्या है? मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। इसमें हाथ से तो काम होगा नहीं। आपने देखे पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बता दिया था कितनी बड़ी बड़ी मशीन लगती थी। तो ऐसे छोटे मोटे नहीं, अमेरिका में इतनी लंबी होगी न जाने कितने मीटर लंबे, उसी से प्लोइंग हो रही, छोटी सी नहीं, बहुत लंबी। हाँ, तो उस तरीके से सो मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। ये एडवांस फार्मिंग होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। एक ही व्यक्ति लगा रहेगा और 10-10 हज़ार लोगों के लिए अनाज उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसमें कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होगी, मिक्स्ड फार्मिंग भी होगी, प्लांटेशन भी होगा, सब कुछ होगी। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। व्हीट एंड मेज आर द कॉमर्शियल ग्रेन्स। तो ज़्यादातर गेहूं और मक्का उगाया जाएगा, ग्रेन की फार्मिंग होगी। मिक्स्ड फार्मिंग भी कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक ही में उगा रहे हैं, गेहूं भी उगा ली, दाल भी उगा ली, या सब्जी भी उगा ली। तो चाहे ग्रेन फार्मिंग करें या मिक्स्ड फार्मिंग करें, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग में अगर तुम्हारे खेत में जो अनाज उग रहा है वो तुम बेचने के लिए उगा रहे हो तो उसको कॉमर्शियल फार्मिंग कहेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग में आप ये देखिए कि बहुत छोटे से लैंड पर बहुत ज़्यादा सामान उगाया जाएगा। ये कॉमर्शियल फार्मिंग। So it is
एट वेरी लार्ज स्केल, कोई भी चीज होगी तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग में कुछ भी होगी। अब ये पोल्ट्री फार्म है तो इसमें बड़े लार्ज स्केल पे पोल्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है। या और देखें तो ये है कॉमर्शियल फार्मिंग। देखो Hello my friends, today we are going to some large major food crops grown in the United States, including soybeans, कितनी बड़ी जमीन का कितना एक साल होगा, 20% देख रहे हो? other food it consumes. और Because साथ ही साथ में agriculture कितने सारे consumes लगते a हैं large amount of food for the और entire ऊपर country. ग्रेन इकट्ठा होता जा रहा है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसा भी होगा। Here's what's going on crop. ठीक है, According to statistics, इसमें आदमी नहीं लगेगा, सब अपने आप होता जाएगा। soybean are the states ये with देखो, the largest soybean growing areas. ये Its task कितना बड़ा is बड़ा to है, sow है about कॉमर्शियल। 128,000 seeds per acre. देख Each लो, year in Minnesota, बिल्कुल about proper commercial है। 7.7 million क्या ये अपने घर के लिए acres उगा रहा है इतना are सारा? used to produce soybeans. बेचने के लिए उगाएगा, एक आदमी सारा का डालेगा, These are 2 week वो old. कलेक्ट भी हो जाएंगे सारा। Soybeans are a very easy plant और to फिर उसमें cultivate. से The जो main है task of the पराली farmer अलग हो is जाएगी, usually जो spraying herbicides and Yeah. fungicides and Huh? providing enough water for soybean plants to सब grow. अलग हो जाएगी। इनके पास प्रॉपर Here about 2 weeks विनोइंग के away, मेथड है। after nearly 3 months, ये देखो, in 2021, soybean production in Illinois is समझ में आ गया तुमको up to कॉमर्शियल क्या है? $76 बोलो, देखो billion. ग्रेन अपने आप निकल रहा है, वहीं पर ही निकल गया। Next, we'll go कुछ to करना पड़ा, फिर से देखो, Michigan. इसमें दिख रहा है ना, खेत में ही ग्रेन अलग हो गया। About 26 यहीं से अब सीधा चला $billion. जाए। Next, in ये to देखो, sow कितना about बड़ा है? 34,000 seeds per acre. In 2021, in Michigan, United ये सब States, अमेरिका is में होता about है, 96 दूसरे देशों में plants, बड़े-बड़े meaning खेत about हैं। 600,000 सभी एक साथ। gallons of, according to statistics from the United States Department of Agriculture. In second place is Illinois with 11 million acres. ये देखो, In the next part of the video, we will go to ट्री almond को हिला farms लिया in और California सारे फ्रूट to गिर see गए। how the process of ऐसा भी होता है, cultivating देखा आपने? and harvesting फिर tons of उठा- नीचे से हिला almonds दिया happens. ना। अब देखो, सो कॉमर्शियल फार्मिंग का क्या मतलब है अर्पित? सर क्रॉप्स जो बेचने के लिए होता है। यानी फार्मिंग दो तरह की है अर्पित, कौन कौन से तरीके की है? सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल। ये व्यापारिक पर्पस के लिए, ये घरेलू और ये बाजारू। सब्सिस्टेंस के दो टाइप क्या हैं? इंटेंसिव और प्रिमिटिव के दो टाइप क्या हैं? और नोमेडिक हर्डिंग। यानी नोमेडिक हर्डिंग का क्या मतलब है कि वो सिर्फ पशुओं का पालन करते हैं। आपके रूप में नोमेडिक हर्डिंग दिखाए गए थे। कॉमर्शियल फार्मिंग में 3 चीजें आती हैं, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड क्या 3 चीजें? ग्रेन फार्मिंग में मेज उगाया जाएगा और वीट उगाया जाएगा, वीट और मेज मक्का। और मिक्स्ड फार्मिंग में आप थोड़े से, मिक्स्ड फार्मिंग हमने आपको सिखाई थी कि नहीं? मतलब थोड़े थोड़े या मिक्स करके भी नहीं तो 3 हिस्से कर लो, एक में दाल उगा लो, एक में गेहूं उगा लो, एक में सब्जी। मिक्स फार्मिंग के अंदर ही आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हो। तीसरा क्या है बताओ? प्लांटेशन। ट्री लगा दिए बड़े बड़े और उसी से खूब सारा टीक वुड पा रहे हैं। या तो लकड़ी के लिए भी, लकड़ी के टिम्बर के लिए भी प्लांटेशन होता है, फ्रूट्स के लिए भी होता है। देखो
मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर। तो इसमें मिक्स्ड फार्मिंग में फूड भी उगाया जाएगा और फॉडर। फॉडर का मतलब क्या होता है? चारा। फॉडर स्कैम किया था नहीं लालू यादव ने, चारा घोटाला, भैंसों का चारा खा गए थे। तो फूड एंड फॉडर दोनों उगाया जाएगा। और प्लांटेशन जरा अगले पेज पे देखो। क्या आप अगले पेज पे बनाना प्लांटेशन देख रहे हैं? आपने देखा है बनाना प्लांटेशन कैसे किया जाता है, कितना इंटेंसिव होता है कि नहीं देखा है? देखा है तो अच्छी बात है। तो बनाना का प्लांटेशन आप देखिए, जैसा आपकी बुक में है वैसा ही देख लीजिए। सो ये देखो बनाना प्लांटेशन, ये देखो इसमें कितने, क्या तुम्हें दिख रहे हैं कि कुछ बनाना दिख रहे हैं तो बता देना। ये देखो In terms of taste and aesthetic appearance, ये सब बनाना है। sunlight, excellent water, staple. ये देखो ये बनाना के ट्री हैं, ये सारे बनाना चेन से जा रहे हैं, आपको तोड़ना होगा भी नहीं। Reasons why they do form growth station. Sigatoka, स्प्रे हो रहा है disease हेलीकॉप्टर banana. से। That allows its safe, precise and pinpoint aerial application of pest control solutions. सर भागी कर सकते होता है बड़े वाले पे नहीं है। PBGEA members assures their customer ये देखो कितने बड़े बड़े बनाना। on the field after bagging. The mature bananas are hard to export their final destination. तो ये बनाना फार्मिंग हो गई। Gained headway in reduced has allowed the company to their bananas are known as friendly bananas in Japan. Friendly because they are friendly to consumers as they eat bananas that are grown using unique firm practices wherein they guarantee that no synthetic chemicals come in contact with the fruit. कितने सारे बनाना है आप देख रहे हो? कोई एक दो नहीं है, ये लगातार। चलो तो इस तरीके से BFC बनाना फार्मिंग। नेक्स्ट इज प्लांटेशन में आपके में बनाना है और क्या दिखाया गया है? प्लांटेशन में टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, टी प्लांट्स होते हैं, कॉफी, रबर का भी होता है। तो रबर प्लांट आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है? हमारे ऑफिस में 2 रबर के प्लांट हैं, देख लेना कभी। उसके पत्ते खूब चमकदार होते हैं, कभी खूब शाइन करते हैं। सो मे बी ऑन द फार्म इटसेल्फ दैट इज ओके। और क्या क्या चीज़ हो सकती है प्लांटेशन में? कैश्यू, बनाना, कॉटन, रबर, कैश्यू, कॉटन, ये चीज़ है। तो these are, और कई अलग है। राइस कल्टीवेशन आप देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है, 2 महीने पानी भरा रहता है तब जाके राइस उगता है। देखा है ना? वेस्ट बंगाल में खूब पानी, इसमें पानी की खूब जरूरत होती है। और सर वीट में पहले करना पड़ता था, बाद में नहीं करना पड़ता। वीट में तो ठंड चाहिए और लेस वाटर चाहिए। पहले वो ऐसे लगाने के लिए पानी चाहिए होता था, बाद में नहीं, वीट में ऐसे लगाने के लिए भी नहीं चाहिए। वीट में लेस वाटर है, अगर ज़्यादा पानी दोगे। ये रबी की फसल है, तो रबी की फसल है, अगर वीट ठंडक की है, उसे खरीफ में बोओगे, ज़्यादा पानी मिलने पे ख़राब हो जाएगी, पानी से ख़राब हो जाती है। वो जो आप बोल रहे हैं ये राइस के कल्टीवेशन के लिए, समझ में आया कि नहीं? नाउ राइस कल्टीवेशन देख लो। राइस कल्टीवेशन के लिए आपको पानी में, उसी में मछली भी लोग पाल लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। ये राइस कल्टीवेशन देखो, ये तो पानी भरा है ये, और इसी के बीच में मछली भी डालते हैं, मछली भी करते हैं, मछली चावल खाएं।
ये देखो ऐसे, ये है राइस, देख रहे हो, ये है राइस। ये मिट्टी उठा दिया, फिर शहरों में घास उगाई जाएगी छतों पे। समझ में आ गया कि नहीं? ये मिट्टी, ये घास नहीं, ये मिट्टी है शहरों में, छत डालना। समझ में आ गया? शहरों में बेचते चलो, इतनी बात हो गई। कॉमर्शियल फार्मिंग में मेजर क्रॉप्स देखो, इन्होंने बताया रबर कहाँ कहाँ पाई जाती है, मलेशिया और इट इज ट्री इन इंडिया एंड श्रीलंका। मैं आपको रबर के प्लांट दिखा देता हूँ, ऑफिस में आप देख लेना, वैसे ही होंगे रबर प्लांट्स। According to Wikipedia, Ficus elastica, the rubber fig, rubber bush, rubber tree, rubber plant, or Indian rubber bush, Indian rubber tree, is a species of flowering plant in the family Moraceae, native to eastern parts of South and Southeast Asia. या किसी ने ध्यान दिया हो तो बाहर से भी देखोगे तो दिख जाएगा। दो प्लांट है रबर के, ठीक है? तो समझ में आ गया आपको रबर प्लांट। ये देखो, Hey guys, subscribe my channel. मैंने बाहर रख दिया, देख लेता। ठीक है ना भाई, ठीक है? देख लो, उसमें एक कॉल भी आ गया रबर प्लांट के लिए। हेलो, चल गौर से सुनिए, अब समझिए मेजर क्रॉप्स क्या है। Large varieties are cropped to meet the requirements. Crops for agro-based industry, major crops are wheat, rice, maize and millets. Millets भी तरह तरह के अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, ठीक है, रागी, जूट एंड कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं। और कुछ पीने योग्य क्रॉप्स क्या हैं, चाय एंड कॉफी। सो मेजर क्रॉप्स क्या हैं? सर टी एंड कॉफी को प्लांटेशन में भी था। हाँ, तो बस वही क्रॉप्स हैं, अब क्रॉप्स में आ जाएंगे कॉमर्शियल फार्मिंग में। तो अब ये देखो, मेजर क्रॉप्स प्लांटेशन में कि प्लांट लगा दिया, उसमें से बार बार काटो। और क्रॉप तो एक ही बार उगती है, क्रॉप को तो खत्म कर दिया, राइस उगा दिया तो एक बार उगेगा। ये नहीं कि उसमें बार बार हर साल राइस काटते रहो। सर उस जमीन पे एक ही बार फिर राइस उगेगा। राइस का प्लांट है पूरा, फिर काट ही लेना पड़ता है, फिर से राइस उगा होगी। और प्लांट्स क्या होते हैं, उसमें बार बार चीजें उगाई जाती है। बनाना प्लांट एक ऐसा है जिसमें एक बार बनाना आता है, बाकी सब में हर चीज बनाना प्लांट दोबारा काम है। अब जरा देखो राइस क्या है, राइस के बारे में क्या बताया गया है, कुछ मुख्य बातें। मेजर फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा ये स्टेपल डाइट है ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी मुख्य आहार। स्टेपल डाइट का मतलब है इसके बिना कुछ खाया नहीं जा सकता। तो स्टेपल डाइट व्हीट कहीं कहीं की है, यूपी की मुख्य डाइट व्हीट है, जबकि बंगाल की, उड़ीसा की और तमिलनाडु की स्टेपल डाइट राइस है। बात समझ है? असम की स्टेपल डाइट भी। तो इट इज स्टेपल डाइट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। स्टेपल डाइट मुख्य आहार, स्टेपल का मतलब क्या है, मुख्य आहार डाइट। सो इट इज स्टेपल डाइट। और क्या है, इसको हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल चाहिए। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, बहुत नमी भी चाहिए। ड्राई एटमॉस्फेयर में यहाँ नहीं उग सकता राजस्थान में। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इतना सब कुछ चाहिए।
सो ये एलुवियल क्लेई सॉइल जो पानी में जो पानी को रोक सके, ऐसी चिकनी मिट्टी। एलुवियल क्लेई सॉइल का मतलब है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, कुल्हड़, दिया, वो सब बनाया जाता है, वो चिकनी मिट्टी होती है। तो एलुवियल क्लेई सॉइल, सो इट कैन बी ग्रोन। ऐसी लेटराइट सॉइल में नहीं हो सकती कि पानी डालो नीचे ही चला जाए, पानी रोक सके, उसमें भरा रहना चाहिए पानी। सो इट कैन बी ग्रोन ऑन, कैसे मिट्टी में उगाई जा सकती है? सर इसको फल सीखो इनसे, आप तो बता ही रहे हो, इनसे भी तो सीखो, साइंटिस्ट हैं। सो इट इज ग्रोन ऑन alluvial clay soil। मतलब अभी अभी बताया, आप देखो कितने कमजोर कमजोर बच्चे दुनिया में, नहीं आश्चर्य होता है ना तुमको? अभी अभी बताया, नहीं बता पा रहा है। सो अब जो पानी को डिटेन कर सके, चाइना में इसके प्रोडक्शन में प्रथम है, फिर इंडिया द्वितीय है, फिर जापान, फिर श्रीलंका और फिर इजिप्ट। सो चाइना इज फर्स्ट एंड इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। इजिप्ट में भी बोल तो रहा है राइस उगता होगा, क्या पता। चाइना, वहाँ नील नदी है ना, नाइल रिवर आसपास, तो उससे वो हो जाता होगा। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। कमर्शियल फार्मिंग के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फार्मिंग, प्लांटेशन, नेस्ट फार्मिंग। देखो ये मतलब कितने डम्ब डम्ब वैज्ञानिक हमारे देश में, कैसे हम लोग चंद्रयान उड़ा पाएंगे? देख लो, है कि नहीं? वो बता ही नहीं पा रहे वैज्ञानिक, कैसे विज्ञान। ना राइस के बारे में 5 लाइनें बताइए। सर राइस जो होता है सर, जैसे हम लोग सर राइस को हमें ज़्यादा पानी में उगाना पड़ता है। फिर चाइना जो फर्स्ट है एंड इंडिया सेकंड है। और फिर जो राइस होता है सर, जो सर उसे हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए। ये कई देशों की स्टेपल डाइट भी है। ये खरीफ की फसल है कि रबी की? सर रबी की। ये ठीक कह रहे, गरीब की फसल। कैसे ये इससे याद करने का तरीका, इन्होंने कैसे जाना खरीफ की है ना? कह रहे रबी उगाता है, रबी की तो है, बड़ी बात। So that is wheat। wheat किसकी फसल है, रबी की कि गरीब की? बोलो। रबी की। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine चाहिए। इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। It requires moderate temperature and sunshine। इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसके अलावा क्या चाहिए? It grows best in winter season। It best in winter, ठंडक भी चाहिए, तभी गेहूं पकता है। इसके लिए पानी ज्यादा नहीं चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, पानी अंदर चला जाए। दोमट मिट्टी मतलब सॉइल और सैंड मिक्स हो। एलुवियल सॉइल है और उसमें बालू में दो मेल की मिट्टी, 2 मट का मतलब मिट्टी होता है, 2 मेल की मिट्टी। तो अगर एलुवियल में कैसी हो जाए, सैंडी सॉइल, रेत मिला दो तो वो क्या होगा, पानी अंदर भी चला जाएगा, थोड़ी नमी भी जाएगी। तो इस तरीके से उसको क्या कहते हैं, लोमी सॉइल। तो वो किस में उगता था, एलुवियल में, और ये किस में उगता है, लोमी सॉइल। इट ग्रोज बेस्ट इन लोमी सॉइल। यूपी, पंजाब, हरियाणा में वहाँ सब यही उगाया जाता है। देखो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सब इसके प्रमुख एक्सपोर्टर हैं। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया में गेहूं का बहुत कमी पड़ गया।
इसलिए भारत एक मुख्य एक्सपोर्टर के तौर पर उभर रहा है। कौन कौन से 6 देश हैं जिसमें गेहूँ उगाया जाता है? सर रशिया, यूक्रेन, इंडिया, बोलो बेटा। सर ये यूएसए, रशिया, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया है क्या? यस सर, ऑस्ट्रेलिया। सही है। यूएसए, रशिया, इंडिया, यूक्रेन, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी है, कनाडा, अर्जेंटीना, ये सब है, और इंडिया भी हो गया। ठीक है, ये सारे देश उगाते हैं। ऐसे 5 देश बताओ सृष्टि जहाँ राइस उगाया जाता है। उधर में देखना। सर जापान, चाइना, श्रीलंका और इजिप्ट। सही है। सो दैट इज इंडिया, चाइना, जापान, श्रीलंका, श्रीलंका, एंड इजिप्ट। इजिप्ट में मिस्र का पिरामिड है, गीजा का पिरामिड। तो मिलेट्स क्या होता है? सर वो सर बाजरा। जो चीप होते हैं कई बार। सो दैट इज कोर्स ग्रेन, जिसमें भूसा या हस्क ज्यादा होता है। अगर आप बाजरा खा लोगे तो पूरा पेट साफ हो जाएगा, एलिमेंट्री के नाम। तो उसमें थोड़ा सा ग्रेन है, हीरा जिसको कहते हैं अंदर में, जो पाउडर, और अदरवाइज भूसा ज़्यादा है। तो इसलिए मिलेट्स क्या होता है, थोड़ा चीप ग्रेन है। जहाँ गेहूँ 40 रुपये वहीं रागी 5 रुपये किलो। तो कर्नाटक में रागी लोग खुद खाते हैं, लेकिन यूपी में रागी अपने पशुओं को डालते हैं। सो ये जो ज़मीन लेस फर्टाइल है, इसको कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन में कुछ भी ना डालो तो मिलेट्स तब भी उग जाएंगे, बाजरा भी उग जाएंगे। तो समझ आया? और उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, गेहूँ उगाना है तो। सो मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन। उसकी रोटी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, उसकी रोटी ऐसे बनेगी जैसे घास की रोटी तोड़ तोड़ के खा। सो दैट इज, दीज आर कोर्स ग्रेन, दीज आर कोर्स। मतलब इसमें भूसे की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे आप पुरानी कहानियाँ पढ़ोगे, वहाँ राजा आया, फिर राजा के लिए उन्होंने गेहूं की रोटी बनाई। आजकल तो सभी गेहूं खा रहे हैं, नहीं तो पहले होता था बाजरे की नहीं बनाई। उसके लिए वो लोग गए बाजार से गेहूं खरीद के लाए 200 ग्राम, फिर उसकी रोटी बनाई। सो एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। यहाँ इट कैन बी ग्रोन ऑन, सर राजस्थान के लोग वो सर मिलेट खाते हैं। यहाँ बाजरे, यहाँ मिलेट्स को खाया जाता है, यहाँ बाजरे की रोटी खाई जाएगी क्योंकि यहाँ लेस फर्टाइल सॉइल है। सो और जबकि पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाएगी, वो खूब पता है। मक्का हुआ, गेहूँ हुआ, इसके लिए खूब जमी। वहाँ मक्के की रोटी, सरसों दा साग, और यहाँ पर बाजरे दी रोटी और वो गट्टे दी सब्जी। सो लेस फर्टाइल सॉइल, ये चीप बिकता है और इट नीड्स लेस रेनफॉल, और इसको बहुत रेनफॉल नहीं चाहिए। इट नीड्स सर इसको मॉडरेट टेम्परेचर। रेन, सर्दियों में उगा लेंगे, मॉडरेट टेम्परेचर है। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा एंड रागी। ऐसा नहीं है कि बाजरे की खिचड़ी भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है, ऐसा नहीं है। बाजरे के यहाँ लोग बनाते हैं। तो जैसे गेहूं है ना, लेकिन गर्म बहुत होता है, बहुत उसमें हीटनेस होती है, अगर जल्दी आदमी पचा नहीं पाएगा। तो अगर सोचेगा बहुत सारा खा लेंगे, लूज मोशन हो जाएगा, इतना गर्म है। तो ये चीज़ अब जरा देखें। सो मिलेट्स हमने देख लिया। मिलेट्स कौन से ऐसे 4 देश हैं अनमोल जहाँ उगाया जा सकता है? सर एक हाँ बोलो। इंडिया, नाइजीरिया, चाइना और नाइजीरिया। ठीक है,
और नाइजीरिया, नाइजर, इन सब में उगाया जाएगा, यानी इंडिया में भी होता है। मेज, सर इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। मेज यानी मक्का। मक्के का आप लोगों ने देखा है? सब तो देख लो मेज फॉर्म कैसा होगा। सर इसको सर मॉडरेट टेम्परेचर और सर रेनफॉल चाहिए होती है और सनशाइन। ये देखो। मिलेट्स, तो मिलेट्स भी देख लो कि रागी, ज्वार According दिखते to कैसे। Wikipedia, millets are a highly varied group of small-seeded grasses, widely grown around the world as cereal crops or grains for fodder and human food. यानी अलग अलग मिलेट्स होते हैं और ये इनके लिए कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये जैसे ज्वार की फसल है, ज्वार बाजरा यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये मिलेट की क्रॉप्स है। ये देखो, समझ में आई कि किस तरीके ये कहीं भी उगाएगा। ये देखो ऐसे सर क्या मिलेट्स, तो रागी इसमें उगाएगी। समझ आया? इसी में रागी। तो बहुत आसानी से, यहाँ तुम बाहर जाओगे ना, केवी नंबर 2 के बगल में खूब उगी है मिलेट्स। कुछ भी नहीं है इसमें, सब उगा है। केवी नंबर 1 वाली लाइन में तो कम से कम 20 पेड़ हैं। देख लेना। तो अब हम देखेंगे कि मेज फॉर्मेशन। देखो मेज प्रोडक्शन कैसे, भुट्टे की खेती। दोस्तों क्या आपने मक्के का उत्पादन, तो ये देखो ये सारे मेज है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप डाले चाहिए 31 से 35 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, पर यदि आपके पास की जमीन में कितनी ताकत है। जब आप मक्का खेती कर लेते ये देखो मक्का, मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 40,000 तो कितनी एक पौधे में भुट्टा है, भुट्टे में लगभग 150 ग्राम वजन आवश्यक निकलेगा। जो उसका दाना है वो 150 ग्राम से कम नहीं निकलेगा। ये 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बैठ जाता है, क्योंकि उतनी ही पड़ेगी। पहली सिंचाई के समय सल्फेट आती है, ये आपको मिट्टी लगाने का बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये देखो भुट्टा देख रहे हो कितने, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड जो ब्लैक कलर का आता है पाउडर में, इन दोनों को आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप अपनी मक्का की तरफ तो ये चीज होगी भुट्टा। ये देखो कितने सारे भुट्टे। So maize requires moderate temperature, rainfall and lot of sunshine. इसको रेनफॉल चाहिए और सनशाइन भी चाहिए। It requires, तो ये खरीफ की फसल हुई कि रबी की? Lot of sunshine and rainfall भी चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर, और इस ये कहाँ उगाया जाएगा? नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया। ठीक है, तो कॉटन देख लो, इंडिया चाइना तो जरूरी लिख लो, सो हर चीज इंडिया ठीक है। और बाकी रशिया, कनाडा, मैक्सिको और भी दूसरे कंट्री में उगाया जाएगा। तो कॉटन कल्टीवेशन, इंडिया में कॉटन कहाँ उगाया जाता है? ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन, उसमें से रुई निकलती रहेगी। ठीक है, इसमें से मतलब कॉटन की तरह का ये है जिसमें से रुई निकल रही है, कॉटन नहीं है, लेकिन ऐसे ही
कॉटन के पेड़ में से भी रुई निकलेगी, जैसे से इसमें से रुई निकल रही है। ये क्या है? देखो रुई, इसमें बीज भी होता है ऐसे ही कॉटन में से हाँ? हाँ, कॉटन के मामले में तो इस तरीके से कॉटन है। तो हम लोग अभी देख लेंगे कॉटन का भी। आपकी बुक में भी तो ऐसे ही बना है कॉटन का, देखो। सो कॉटन का सीड फट जाएगा तो उसमें से ये निकलेगी। अब जरा देखें कॉटन के लिए क्या क्या चाहिए। हाई टेम्परेचर, हाई लाइट रेनफॉल। महाराष्ट्र में रेनफॉल नहीं होती, नासिक में कहीं भी नहीं होती। कितने किसान मर जाते हैं सूखा ग्रस्त होने की वजह से, वहीं कॉटन होता है। तो इट रिक्वायर्स लेस रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये सारी चीजें चाहिए। और इसके अलावा 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 दिन तक बिल्कुल भी ठंडक ना पड़े, पाला ना पड़े। साल में 210 दिन जहाँ ठंडक ना पड़ती हो वहीं चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री, ठंडक नहीं रहनी चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र में है, तब कॉटन होगी। चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट। चाइना, इंडिया, यूएसए, सर पाकिस्तान, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट। सर एक पेन बांग्लादेश। हाँ वहाँ पे सर। ठीक है, डालेंगे। जो बांग्लादेश है ना, वो हमारे यहाँ से कॉटन लेता है और विश्व में नंबर 1 कपड़ा उत्पादक देश है। हमसे लेके विश्व में प्रथम बन गया, वहाँ उगाया नहीं जाता। जूट, जूट से क्या बनते हैं? जूट एक फाइबर है, जूट के बैग बनते हैं। तो इट इज गोल्डन फाइबर। आप जूट देखें तो पता चलेगा। जूट की स्टेम होती है, उसको ही काटा जाता है। ये देखो उसका प्लांट होता है। जूट ट्री, ये देखो जैसा इन्होंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। इनकी भविष्यवाणी सब सच हो रही है। ये जूट के पेड़ हैं। तो अगर आप देखें तो जूट कैसा है और इसके फाइबर बनेंगे, ठीक है। तो देखो मेकिंग प्रोड्यूस ऑफ जूट, जूट से कैसे सामान बनाते हैं ये देखो। तो पहले तो अभी हमने जूट आपको दिखाई दिया था। जूट की इंडस्ट्री है हमारे यहाँ बांग्लादेश और इसमें वेस्ट बंगाल में। ये देखो ऐसे पेड़ हैं जूट के, प्लांट बोलते हैं। ये देखो जूट के प्लांट। पानी है, पानी में सड़ता नहीं है ये। इसके अंदर से जूट निकाल रहा है। इसके स्टेम के अंदर छुपा होता है। हाँ, ये सबके अंदर से जूट निकाल रहा है। ये फाइबर है। और फिर क्या हुआ, उसको धो लिया, ये देखो ये जूट निकल रहा है। अब फिर इसको सुखा लिया, एक जूट के सामान, ये जूट के सामान देख रहे हैं आप, है ना। जूट के बैग तो देखते ही हैं। सो इट इज गोल्डन फाइबर। ये एलुवियल सॉइल में उगता India है। is the world's biggest producer of jute, followed by Bangladesh. ये जूट है, Jute जूट is के रस्सी देख रहे हो। primarily grown in West Bengal, Odisha, and about 70 to the labor-intensive industry. It has high tensile strength,
Acoustic for insulation, replacing glass wool, gunny बहुत सारा bags, लोड ले सकता है, कितने सुंदर सुंदर चीजें हैं। curtains, carpet backings, paper, sandals, carry bags, and furniture. ये आर्ट होता A है। golden fiber ये revolution. बहुत महंगे आते हैं जो जूट के सामान है। सो इट इज गोल्डन फाइबर। ये बोलते हैं वो मुश्किल से है। जूट की रस्सी भी मिलती है। सर, ये alluvial soil- एलुवियल सॉइल में होता है हाई High टेम्परेचर, temperature. हैवी रेनफॉल And चाहिए। sir, humid जैसे आपने देखा था climate. पानी से उठा रहा था। सो सर ह्यूमिड क्लाइमेट इट इज ग्रोन ऑन एलुवियल सॉइल। पर कोकोनट के जो बाहर की आउटसाइड एलुवियल सॉइल, इसको हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। हाँ, तो कोकोनट के बाहर जो थोड़ा फाइबर सा लगा रहता है वो भी यूज आता है क्या? हैवी रेन, क्या चीज? तो कोकोनट के बाहर जो फाइबर सा लगा होता है वो भी सर ये काम में आता है क्या? हाँ, उससे भी आप काम ले सकते हो। मान लीजिए कि कोकोनट के बाहर अगर फाइबर ऐसा है तो वो भी एक तरह से फाइबरस है। तो कोकोनट का भी एक तरीके से जो फाइबर है उसकी भी रस्सियां बनती हैं, ठीक है कि नहीं? कोकोनट की। सो हैवी रेनफॉल और इन सबको चाहिए। इंडिया एंड बांग्लादेश, इसमें इंडिया एंड बांग्लादेश है इसके बनाने में। कॉफी, क्या कॉफी में, कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, तो गर्म होना चाहिए। तो कॉफी कहाँ कहाँ बना हो सकती है? तो इंडिया में भी साउथ में कॉफी है, कहीं कहीं केरला में या कर्नाटका में कुछ कुछ कॉफी, लीडिंग से प्रोड्यूसर ठीक है। थोड़ा वहाँ गर्म क्लाइमेट चाहिए, ठंडक नहीं चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट। रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफी के सीड्स देखे आप लोगों ने? यस सर अजीब इसकी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए, पानी रुकना चाहिए नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और इसके लिए हिल स्लोप्स आर सुटेबल, क्योंकि वहाँ पानी नहीं रुकेगा तो हिल स्लोप्स चाहिए, आर बेस्ट फॉर इट। तो ब्राजील लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। कॉफी पीने से गर्माहट भी आती है। ब्राजील, कोलंबिया एंड इंडिया। इंडिया मोस्ट ऑफ चीजों में उगाता है। सो टी, क्योंकि इतनी जनसंख्या है वो बाहर के भरोसे थोड़ी खा पाएगा, इतने लोगों को कैसे खिलाएगा, खुद नहीं उगाएगा। टी, टी इज बिवरेज, टी भी बिवरेज है। सो ये प्लांट्स पे उगाया जाता है। सर बीवरेज मतलब पीने योग्य बिवरेज, जैसे पेप्सी, कोला, कोल्ड ड्रिंक, मट्ठा, लस्सी, ये सभी बिवरेज है जो तुम पी सकते हो। एनीथिंग, इवन लिकर भी बिवरेज है, अल्कोहल। सो दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड आप किसी से पूछते हैं कि यू वुड यू लाइक टू टेक सम बिवरेज, तो हाँ बोल देगा क्या पीना। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, पूरे साल बारिश हो, ठंडा क्लाइमेट रहे, तो ऐसा तो पहाड़ियों में होगा। तो इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ये ज़्यादातर बनती है। रेनफॉल throughout the year for the growth of its tenderness. जो हमारे यहाँ चाय होती है सबसे अच्छी, वो 5,000 रुपए किलो की है, वो बाहर भेज दी जाती है, और हम लोग 300 रुपए किलो की चाय। देश में अगर 5,000 रुपए किलो की चाय बेची जाए तो कोई पिएगा? तो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का, भारत में जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान वो बाहर ही जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ठीक है, थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ ऑन टेंडर लीव्स, जब पत्तियाँ कोमल होंगी
सबसे ऊपर टिप पे, तो वहीं पर चाय उगेगी, उसको निकाल लिया जाएगा। नाउ ये चीज है, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप होना चाहिए, ठीक है। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इन सब में बेस्ट क्वालिटी का टी उगाते हैं। लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स, ये सब चीजें चाहिए। लेबर बहुत चाहिए, क्योंकि टी निकालने के लिए, पिकअप करने के लिए आपने देखा होगा ना टी गार्डन में। सो इट रिक्वायर्स लार्ज स्लोप्स, लार्ज स्लोप्स चाहिए। और इसमें इंडिया इसमें भी है, केन्या, चाइना, श्रीलंका, इंडिया। इंडिया, चाइना तो लिख ही लो, और श्रीलंका। चाइना में काफी चीजें होती हैं, इन सब में उगाया जाता है। नाउ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में देखें। तो हम लोग केरला गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने टी प्लांटेशन देखा था, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। कब की बात है सर? 2022 की बात है। तो पैरों पे आप कर दो ना, पैरों से तो हो नहीं जाए, सर उसको दबा के दबा के नीचे कर दो ना, उठाना। नाउ इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सर टीम में क्या लिखा है? क्या? सर इट रिक्वायर्स क्या लिखा है? कूल क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट, तो सर टीम में सर लास्ट में स्लोप्स के कहते हैं। लार्ज लार्ज स्लोप्स। अब देखिए,
ये देखो, ये मैम वहाँ के क्लाइमेट में टी क्लास 10 है ना। सब वीडियो तो हम लोग मुन्नार गए थे, वहाँ पे ऐसा इतना पानी भी नहीं है। अरे मिला क्या जादू करके अभी चल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सो कृषि विकास, हम खेती का विकास कैसे करें। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to effort made to increase farm production. The efforts to increase farm production is known as agricultural development. Efforts farm production by advanced techniques using, हमें क्या करना चाहिए, एडवांस टेक्निक, फार्मिंग टेक्निक्स, is called agricultural development. अब जरा देखें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर लो, या फिर सही तरीके का फर्टिलाइजर्स यूज कर लीजिए, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स और एग्रीकल्चरल मॉडर्न इक्विपमेंट्स ना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर लो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसको HY भी कहते हैं, और प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक, सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन टेक्निक होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फीड्स, तुमने अनाज उगा दिया, पता चला प्लेटफॉर्म में रख दिया, वहाँ सड़ रहा है, पानी बरस गया, सब सड़ गया, बेकार हो गया कि नहीं। सो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप वो बहुत जरूरी है, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन भी चाहिए कि नहीं, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसके इज नीडेड फॉर इट, इज नीडेड फॉर इट। अगर हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करेंगे तो क्या हमें फूड सिक्योरिटी मिलेगी, क्या सभी को खाना मिल जाएगा? यस सर। दैट इज developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings. हमारे यहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, हम यहाँ पर क्या है, एक छोटे से खेत में गेहूँ भी उगाते हैं, सब्जी भी उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, जबकि कनाडा में या USA में वहाँ गेहूँ ही गेहूँ उगता है, क्योंकि ठंडा का पूरे साल गेहूँ उगता है, 2 फसल उगा लेते हैं। तो इस तरीके से
एग्रीकल्चर एज ए डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, सब जगह अलग अलग तरीके का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस हो रहा है। फार्म इन इंडिया, अगर तुम देखो मुन्ना लाल के पास 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन है जो ये खेती कर रहा है, यही है मुन्ना लाल। तो ही परचेजेज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, द सीड लैंड इज फर्टाइल, और वो दो क्रॉप्स तो उगा ही लेता है साल की, और इस तरीके से उसके पास काफ़ी पैसा आ जाता है। वो ट्रैक्टर रेंट पे ले लेता है, अपने खेतों में ट्रैक्टर चला लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 बैल भी हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर, तो वो दूध बेच देता है कोऑपरेटिव स्टोर में। ही इज़ ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहाँ से उसको फिर फॉडर चारा भी मिल जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली हेल्प हिम, तो सभी लोग उसको खेती के काम में मदद करते हैं। क्या तुमको मालूम है जो एयरफोर्स में काम करने वाले सैनिक हैं वो कटाई के समय अपने घर चले जाते हैं कि 2 मजदूर कम लगाने पड़े। He sells his produce in the mandi, since majority of the farmers do not have lack storage facilities, तो इसलिए उनके लोगों के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो मंडी में बेच देते हैं। अगर उनके पास स्टोरेज हो तो जब गेहूँ सबसे महंगा हो जाता तब बेचें, उससे उन्हें फ़ायदा हो। फार्म इन यूएसए देखो कितना लार्ज है, अभी हम लोगों ने देखा भी था कि नहीं? छोटे छोटे नहीं होते हैं वहाँ, और वहाँ पर आपने देखा था ऊपर की स्प्रे भी हवाई जहाज़ों से हो रहा है, जैसे अभी देखा था ना। तो उस तरीके से वो लोग 300 हेक्टेयर है, यहाँ 1.5 हेक्टेयर है, और वहाँ एक के पास देखो लिखा है 300 हेक्टेयर जमीन। तो जिसके पास 300 देख लो, उसके नीचे 300 भी लिखा है। मान लो मिड वेस्ट यूएसए इन आयोवा स्टेट होन्स 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, वो जो हो रहे हैं वहाँ। तो इससे तुम देख सकते हो कि उनके अपने प्रोग्राम होंगे, अपने पेस्टिसाइड्स के स्प्रे के तरीके होंगे। एंड हिज पेस्टिसाइड्स दे आर रिक्वायर्ड, ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल जानते हो, जमीन में खोद के फिर सीड डालना, उसके अपने मेथड्स हैं। तो वो अपने आसानी से थ्रेशर्स हैं जो हस्क को अलग कर देते हैं, नहीं फार्म वेस्ट को अनाज से अलग, तो उसे थ्रेशर कहते हैं कि नहीं। तो अलग तरीके, ऑटोमेटेड ग्रीन स्टोरेज है, और वो एजेंसी में चला जाएगा। वर्क्स लाइक बिजनेसमैन, वो एक वहाँ जो फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, वो खेती नहीं करता है। हो सकता है वो ज़िंदगी भर मिट्टी छुए भी ना, उसको क्या ज़रूरत सोने की, ट्रैक्टर में बैठ के सब काम हो रहा है उसका। सो इस तरीके से होता है। समझ में आ गई बात आपको? नाउ अब जरा देखिए एक्सरसाइजेस। What is agriculture? Okay. Chapter 3, Class 8, Geography Solutions. So, now let us see what does it mean by agriculture. एग्रीकल्चर से हम क्या समझते हैं? नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स, ये क्या ज्योग्राफी मिनरल्स का ये कौन सा चैप्टर है? सर ये सब पुराना है ना, 4th चैप्टर है। ये वाला खोल दिया। So, what is agriculture? Let us see. Agriculture is the primary activity that involves cultivation of crops. देखो इस बात को, agriculture is primary activity. ये primary है, secondary है कि tertiary? Is primary activity which involves, इसमें rearing of animals भी आ जाएगा, which involves cultivation of crops
फ्रूट्स भी उगाना, ठीक है, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्लावर के लिए तो हॉर्टिकल्चर था ना, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स नहीं है बुक में, देखो जरा वो पहला देखो क्या लिखा है, तो इसमें क्या है, रेजिंग क्रॉप्स ही लिखो बस, क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को कौन प्रभावित करता है। द टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, कैसी जमीन है। सो एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड बाय, एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड बाय, सिर्फ टोपोग्राफी लिख दो। टोपोग्राफी का मतलब है आसपास का वातावरण, उसमें सब कुछ आ जाता है। टोपोग्राफी में बहुत कुछ आती है, हवा कैसी चलती है, कितनी धूप है। टोपोग्राफी, टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, कितनी रेनफॉल होती है, ठीक है, ये सारी चीजें टोपोग्राफी। और लाल मिट्टी है कि काली मिट्टी है, टाइप ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अमाउंट का मतलब प्रेसिपिटेशन ही है, प्रेसिपिटेशन लिख सके तो बहुत अच्छा है। नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम की खेती से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, where the fertility of soil of the farmer is diminished। तो इसमें क्या किया जाता है, बोलो फिर से बोलो, क्या बोल रही थी। Sir, a plot of land, in a plot of land, large trees are cut and grasses are burnt and the ashes were mixed with soil। यही तो होता ही है। और ये क्या पूछ रहा है, what is shifting cultivation, a type of farming। बुक में भी लिखा होगा, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक दो पेज पढ़ो। a type of farming, क्या लिखा है बोलो, पढ़ो जरा लाइन। A type of farming in which agricultural activities are shifted from one land to other। नहीं, ये तो होगा ही। Sir, इसमें लिखा है a plot of land is cleared by felling the trees and burning them, the ashes are then mixed with soil and सही है, crops वही like चीज बोल रही है। So in which, ये भी लिख लो, in which agricultural activities are shifted from one land to other। Agricultural activities are shifted from one land to other। It includes cutting of trees, और क्या बोला था अद्या, burning them। बर्निंग है, Yes। burning them and mixing ashes with, and mixing, जो उसकी राख है, ashes का मतलब राख, with soil। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ देवव्रत, इसके क्या क्या हानियां हैं, डिसएडवांटेज बताओ जरा। सर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के सर, जो लैंड पे सर हमने कल्टीवेशन कर लिया सर, उसके बाद वो सर बहुत टाइम नहीं, डिसएडवांटेज है कि लोग इसमें जंगल काटते रहेंगे। देखो 4 डिसएडवांटेज है, क्योंकि तुम जितनी बार भी शिफ्टिंग करोगे तुम नए जंगल काटोगे, तो क्या ये अच्छी बात है। तुम्हारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो एक दिन तो तुम सारे जंगल ही काट डालोगे। सो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिफॉरेस्टेशन, और सेकंड क्या है,
सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, फिर तुम उस जमीन को छोड़ दोगे तो सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। थर्ड क्या है? मतलब आपको एक बड़ी जमीन नहीं मिल पाएगी, आप छोटे छोटे जमीन में, क्योंकि सारे पेड़ तो काट नहीं पाओगे, उसकी ब्रांचेस ही काट पाओगे, ट्री तो नहीं काट सकते, तो इसमें स्मॉल पैच मिल पाएंगे आपको फॉर कल्टीवेशन। और चौथा क्या है? नॉट सफिशिएंट फॉर फीडिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आप बड़ी जमीन का पेट नहीं भर सकते हो। नॉट sufficient to fulfill requirement of large population। उसके लिए तो अमेरिका जैसा चाहिए। अमेरिका में उतने ही पीस ऑफ फील्ड में 5 गुना अनाज उगता है, जबकि कम लोग काम करते हैं। वहां कभी कीड़े नहीं लगते हैं, हर चीज का प्रॉपर मैनेजमेंट है। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चरल। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या चीज होती है? फोर्थ डी। वास्तव में इसमें रोमन में लिखा है, हम लोग भी रोमन में लिखे 1 2 3 और 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। जैसे कौन कौन से जिसमें प्लांट लगाए जाते हैं। प्लांट अलग है, क्रॉप अलग है। क्रॉप को जड़ से काट दिया जाता है, वो सिर्फ एक बार उगती है, फिर अगली बार फिर उगाना पड़ेगा। प्रोसेस्ड इटसेल्फ और या फार्म, इनको प्रोसेस भी करना पड़ता है। ये नहीं कि चाय काट के बेच दो। समझ आई बात कि नहीं? उनकी प्रोसेसिंग भी तो होती है। बनाना को तो एक बार काट के बेच सकते हो, लेकिन बाकी टी, कॉफी, रबर को ऐसे ही बेच दोगे कि उसका वल्कनाइजेशन करोगे, सल्फर मिलाओगे। कॉल तो आती है, ठीक है। नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन कल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज टाइप ऑफ कॉमर्शियल, ये टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। जो कॉल आती है वो एक दिन मैं संडे को बैठ के सब कर लेता हूँ। जैसे मान लो आती है हफ्ते में 7 दिन के अंदर सब कॉल, फिर वापस के हाँ किसने किया था, कि आपने वेडनेसडे को कॉल किया था क्या, तो बताइए। ठीक है, देखो कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर ओनली ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, बहुत बड़ी बात है। वेयर ओनली, आपने बनाना की खेती देखी तो सिंगल क्रॉप बनाई जाएगी और फिर क्या होगा? सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, ए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, से बहुत पैसा लगेगा। अब जब बहुत बड़ी जगह पे भी तो होगी ना। अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज नीडेड। अब जो प्रोड्यूस हैं उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन फार्म और नियर बाई फैक्ट्रीज। प्रोडक्ट्स आर, या तो वहीं प्रोसेस कर लो इन फार्म, और इंडिया में तो नियर बाई फैक्ट्रीज में होता है, इतनी मशीनें हैं नहीं। जैसे टी, कॉफी, इनके प्लांट्स हो गए, और क्या हुआ? शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन। शुगर केन, कैश्यू, बनाना, जिनको सीधा ना बेचा जा सके। जूट, हाँ तो जूट में भी यही है, बनाना, कॉटन, जूट लिखा है बुक में, कॉटन, रबर, दिखाओ कहाँ लिखा है? कितने हैं? इन सबको ये एग्जाम्पल है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में दिव्या बताओ, क्या क्या चीज है?
One type of crop is grown. बोलो आते Sir, it is a commercial farming it need large amount of land and labor. In this one kind of crop is grown: tea, coffee, cotton, cashew, etc. are grown. Either it is processed in field or in nearby. Nearby factory. हाँ रिपीट करो. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, पर उन्हें हम लोग जैसे सर सीधा नहीं बेच सकते, उन्हें हमें सर फैक्ट्री ये बताते ही नहीं है, ये हिंदी में जाते हैं. तुमने हिंदी मीडियम में दिया क्या सर? ये फिर इंग्लिश से बुक होगा, बताते ही नहीं हो कभी. हाथ तो ऐसे उठाने जैसे बगल वाला बता ही देगा. नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ. तो मान लीजिए फाइबर क्रॉप्स के नाम बताओ. Cotton and jute. कॉटन एंड जूट. कॉटन एंड जूट. अच्छा, इनके लिए क्या कंडीशन है? जूट ग्रोज इन alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall. जबकि कॉटन के लिए ये सब नहीं चाहिए. जूट ग्रोज इन alluvial, चिकनी मिट्टी, लिख लो alluvial soil, चिकनी मिट्टी. ठीक है, और हैवी रेनफॉल भी चाहिए इसको. एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. ठीक है, नमी चाहिए. और जबकि अगर तुमने कॉटन पे पानी गिर गया तो सारा कॉटन जमीन में गिर जाएगा. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लेस रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन. 210 days frost. हाँ बिल्कुल सही. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लेस रेनफॉल एंड 210 days ऑफ फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन. फ्रॉस्ट फ्री, ठंडक नहीं चाहिए इसको, कंडीशन फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ. ठीक है. नाउ इसके आगे हम लोग कल करेंगे. अब कल सिविक्स भी ले आना. कल 9 से 10:45 आपकी सुबह क्लास. Sir, शाम को आज शाम की नहीं.